Hello my dear children, welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with you all with a new video for tricks for solving numericals in physics. So in physics actually students are having the fear of physics. They are losing their confidence because they are not able to solve the numericals. So I am trying a little bit to help you to get out of this fear and make this way smooth and easy for you. So tricks के अंदर सबसे पहले important चीज़ है कि whenever you are reading a statement in the question paper, if it is given that you have to this and solve this, so you have to read the statement carefully. And first point what you will do, that is read the statement properly. Now after reading the statement, you have to segregate that what is given to you and what you have to find out. But what is given to you, what you have to find out, how you will come to know. How you will come to know? By understanding the statement. After reading, try to understand the statement, that to which topic this numerical is related to. So in the second step, what you will do, you will relate the numerical statement with a particular topic, right? Now after relating with the particular topic, you will come to know about the topic, and then you have to think about the formulas you have done, derivations you have done for the related topic, right? After that you will find out the formula of the topic. Obviously, right, when you will recognize the formula, that this formula has to be applied, then what you have to do, you have to write the given physical quantities. Now given physical quantity, how you will identify? Dear students, if you remember, I told you in my previous video that all the physical quantities can be measured, right? And if they are measured, there will be a particular unit for them in which we are going to measure the physical quantity. Now you have to find out that which physical quantity is given by finding out the unit. If you are very much aware about the unit, then it is very easy for you to recognize the physical quantity. Okay, so write the given physical quantity. To write this, you have to understand the units of physical quantities. अब अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. एग्जांपल के लिए अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट, हर्ट्स है, ऑंगस्ट्रॉम है, मीटर है, किलोमीटर है, सेकंड है, तो इन चीज़ों से हमें पता लगेगा कि व्हाट इज़ गिवन टू अस, राइट. दीज आर द सिंपल यूनिट्स फॉर क्लास 9 and 10 I am telling you, right. In higher classes you will be familiar with the ohm, like ohm will be there, ampere will be there, volt will be there, right, Tesla will be there. So this way the different units will be there and you have to understand the units properly. अब units जब समझ में आ गए तो आपको units से ही पता लग जाएगा कि what is given to us. And dear children, अगर given क्या है और find out क्या करना है, अगर ये आपने identify कर लिया, then numerical solution is not a big deal for you, right. तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फोकस ऑन यूनिट्स ऑन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज
जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज करो उनके यूनिट अच्छे से समझो, अच्छे से। CGS एंड SI दोनों यूजफुल है। ओके, अब जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया फिजिकल क्वांटिटीज को, फिर यूनिट के हिसाब से उनको फाइंड आउट किया, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट फाइंड द टर्म टू बी calculated, term or physical quantity which has to be calculated, right? Then in the next step use the appropriate formula. अब जब आपने सारी फिजिकल क्वांटिटी लिख ली कि दिस इज गिवन टू मी एंड दिस आई हैव टू कैलकुलेट, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली डू वन थिंग, यू विल यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब जैसे मैं आपको एक इक्वेशंस ऑफ मोशन की एग्जांपल देता हूँ, जैसे v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब न्यूमेरिकल में मुझे कैसे पता लगेगा, जब कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड वाली होगी या मीटर पर सेकंड स्केयर वाली होगी, तो इस यूनिट से मुझे पता लगेगा कि दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज ईदर इट्स इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और टाइम अगर डिस्टेंस अगर दिया मीटर्स में तो ठीक है, नहीं तो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, इन दिस देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटी, टोटल 4 है, तो इन 4 में से एनी 3 विल बी गिवन, एनी थ्री विल बी गिवन, और सिंपली मुझे फॉर्मूला अप्लाई करके 4th वाली फाइंड आउट कर देगी, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर दिस इज नॉट सो ईजी, कि आई एग्री कि कई न्यूमेरिकल्स में सिंपल फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेशन होती, तो व्हाट यू हैव टू डू, देयर मे बी पॉसिबिलिटी that you have to apply 2-3 formulas, different formulas or same formula for the different conditions, right? I will explain you better with the help of example one by one. So this is clear, use the appropriate formula. Last but not the least, after this you have to show your mathematical skills for the calculation. Mathematical skills, very important, mathematical skills, right? These all are the points which has to be very carefully followed. Mathematical skills, and the most important is don't forget to write the unit in answer. If you will not write the unit, half mark simply will be deducted. So dear children, again and again I am saying that units are very important in physics. You have to be very careful while using the unit, which unit you are using and how you have to use it, right? I hope so. एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, राइट, प्रॉपरली स्टेटमेंट को रीड करना है। उसके बाद उस टॉपिक को हमने, उस जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसको हमने रिलेट करना है, राइट, रिलेट करना है कि विद विच टॉपिक इट इज रिलेटेड टू। Then if we are getting that topic, then we have to remind the formulas और derivations के results जो हमने किए हैं, ओके। उसके बाद जो स्टेटमेंट के अंदर फॉर्मूला हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, देन यू हैव टू राइट आउट द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन कौन सी गिवन है। उसके बाद जो है फिजिकल क्वांटिटीज को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको रिमाइंड कीजिए। Then you have to write down the physical quantity, then find the term to be calculated, जो given quantities हैं, और find out क्या करना है उनको लिखिए। उसके बाद appropriate formula आप चूज कीजिए, उस related topic में से कौन सा appropriate formula हो सकता है जिसमें ये सारी quantities given as well as calculated जो quantity है वो सारी quantities एक ही formula में है, right? Then after this you have to apply your mathematical skills, or the last but not the least, don't forget to write the units after calculating the answer. So when you write the given physical quantity and the quantity to be calculated, तो हाफ मार्क और 1 मार्क फाइनल हो जाता है। न्यूमेरिकल को अगर हम 3 मार्क्स का मान के चलें, एंड द फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई हाफ मार्क, तो 1.5 50% मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो अगर आप फॉर्मूला तक लिख देते हो। गिवन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, इट्स नॉट ए बिग डील, वो इजीली हो जाता है, तो 1.5 आप सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन को प्रॉपरली फॉलो स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, एंड फाइनली यू विल रीच योर आंसर। अब मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल के साथ बताता हूं कि हाउ टू सोल्व अ न्यूमेरिकल, राइट, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड।
न्यूमेरिकल्स का कोई भी फियर नहीं होता, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से आते हैं, एंड एक बार जब आने लगे न्यूमेरिकल्स तो फिर मज़ा आता है उसको करने में। तो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट of 20 मीटर, कैलकुलेट, कई बार तो सीधा ही न्यूमेरिकल में लिखा होता है, जैसे इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, राइट? And the velocity with which, second part is the velocity with which it will strike the ground, with which the ball strikes the ground, right? चलिए, तो अब इसमें हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अब ये मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और बॉल ऊपर नीचे जा रही है, राइट? अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है। वैसे लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, राइट? लेकिन अगर बॉडी अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करती है तो v इज इक्वल टू बन जाता है u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू बन जाता है u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे 2as आएगा क्योंकि ये लीनियर मोशन है। जब बॉडी रोड पे चलेगी तब ये इक्वेशन लगेगी, ऊपर नीचे जाएगी तो ये इक्वेशन, मतलब a जो है वो आपका g में कन्वर्ट हो जाएगा और जो s है वो हाइट में। ओके, तो मोशन का पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि क्वांटिटीज कौन कौन सी गिवन है। हाइट गिवन है मुझे 20 मीटर, राइट? मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, अब क्या हुआ कि बॉल को ड्रॉप किया है। जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो मेरे हाथ में बॉल होगी, देन आई विल रिलीज। तो इसका मतलब पहले बॉडी रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। एज द बॉडी इज इन अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन, तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी है वो हम 9.8 या 10 दे सकते हैं। तो अगर नहीं गिवन है तो हम 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे फाइंड आउट करना है t। अब आपको इन तीनों इक्वेशंस में से देखना है, एक चीज़ और याद रखनी है, जब बॉडी हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो उस पर g की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव। ओके, अब v u g t फाइंड आउट करना है। देखिए तीनों इक्वेशंस मैंने लिख ली, राइट? क्योंकि यही इक्वेशन यूज होती है। तो v u एंड g इज गिवन, t फाइंड आउट करना था। तो लीजिए भैया, फर्स्ट इक्वेशन में ही मेरा सोल्यूशन हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो टाइम टेकन कितना हो गया, नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी नहीं, h u एंड g थी, सॉरी, h u एंड g। तो सेकेंड इक्वेशन हम प्रेफर करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। h कितना है 20, u कितना है 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये कितना बना बेटा, 20 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वेयर और टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड्स। अब ये जो सेकेंड्स हैं वो लिखने बहुत ज़रूरी है, यही मैं बात कर रहा था लास्ट पॉइंट में कि यूनिट्स हमें लिखने बहुत ज़रूरी है। अब फाइंड आउट करना है बेटा, द वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगा। इनिशियल वेलोसिटी है, अब तो मेरे पास टाइम भी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ही प्रेफर कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अप्लाई कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v मुझे कैलकुलेट करना है, u 0 था, g 10 था, t था 2, तो v इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन यूनिट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, so I have clearly mentioned the unit that with which we have to find out the value, right? So
this is the way that how you can solve it, how you can solve the numericals. Okay, so I hope you have understood this properly. Clear about equation, how to use, and importance of units. I hope you have understood that video and understood that how to solve the numericals. So one by one you will start stepwise, okay, and it will keep you motivating if you are getting the answers properly, but follow the steps which I have discussed with you in my video. If you have any doubts still in the numericals, in any topics of physics, you are always welcome to drop a message on my YouTube channel Science with Shekhar Sir. Thank you so much for watching the video.